Hello everyone, hope you're doing great. So today we thought that we should bring this article into the channel because there has been a huge amount of controversy that has been rising against this new scheme that the government has just launched. That is the Agnipath or the Agniveer scheme. Now, let us look at this article and understand. Just a point of order before I start reviewing this article. This article is very skeptical of the scheme, very, very skeptical. I mean, I believe there is a certain point of belief that I believe that the author has a negative bias against the government, and we as candidates or aspirants, we cannot have this negative bias before we go into the exam. We need to have a neutral stand, and I will write this on the paper. We need to have a neutral stance. And why this article I believe would be helpful is because in the answer you need to write the pros and cons of something. मतलब आपको एक अच्छे पहलू भी लिखने होते हैं एक स्कीम के, अगर कोई स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, और उसके बुरे पहलू भी लिखने होते हैं, क्योंकि आप इन्हीं को यूज करके बताएंगे कि क्या क्या इम्प्रूव हो सकता है उस स्कीम के अंदर. You will tell using the cons only what can be improved in the scheme. These red flags will help you understand ki what are the problems that a scheme can face in future, right? Now I am a very big believer that first of all we the best way. I just saw a debate recently in which one speaker who was a retired military officer, he said that the best way to judge if it's a pudding or not is to taste it. So the best possible way in order to understand the scheme is to actually let it implement, let the government understand what is happening, how it is happening. It will present some problems and challenges for the government as well, but it will not let the students fail, right? They have brought the scheme for some welfare, some amount of welfare, and thinking something for the students and the children. So I believe that it should be implemented, and first of all it should be understood, and all the things that are mentioned, all the points that are used against this should be answered by the government and should be made as an FAQ or told everyone that they will be taking care of it. All right. So let us understand what this article says and then we'll try to sum it up. First of all, one more thing, that you don't have to read the entire article to understand it. There are just a few points in the article that can be very helpful for you. इस आर्टिकल के अंदर सिर्फ कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने की ज़रूरत है, जो आप आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं. All right. First of all, first paragraph में the structure of military, immense ramifications and security, Agnipath scheme. Agnipath scheme is a major structural reform with the consequences both for the armed forces and society at large. All right. An introduction. Some reforms and restructuring of the armed forces was overdue. Sometimes skepticism about the reforms reflects an underlying status quo bias rather than an assessment of the needs. But it is also the case that this Agnipath is much about creating a political illusion of reform. So again, I'm going to not read this. This is I'm sensing negative bias here because we don't use the past and the future references. We are just going to use specific references to the Agnipath scheme. All right. So let us go. Brazen institutional populism will always incur long-term cost for the institution. This is a very good line. ये line आप आंसर्स में यूज कर सकते हैं. ब्रेजन इंस्टीट्यूशनल पॉपुलिज्म मतलब अगर लोगों को सिर्फ बहलाने फुसलाने के लिए काम करेंगे तो इसके बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म कॉस्ट हो सकते हैं इंस्टीट्यूशन के लिए, गवर्नमेंट के लिए इनफैक्ट. Always protecting the benefits of incumbents in that institution will come at an expense of future recruits. मतलब आप जब भी जो उस इंस्टीट्यूशन के लोग हैं, जो डिसीजन मेकर हैं, उनको बचाने की कोशिश करेंगे, तो उसका एक्सपेंस जो है वो फ्यूचर के जो रिक्रूट्स हैं उस इंस्टीट्यूशन में आने वाले, उनको भुगतना पड़ेगा, राइट? समटाइम्स फिजिकल क्राइसिस कैन बी लेवरेज्ड फॉर क्रिएटिव रिफॉर्म. मतलब फिजिकल क्राइसिस, अगर कोई मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोई फिजिकल
क्राइसिस चल रहा है तो उसको लेवरेज किया जा सकता है क्रिएटिव रिफॉर्म के रूप में। जैसे फॉर एग्जांपल इसी न्यूज़पेपर में या हिंदू न्यूज़पेपर में आई गेस एक आर्टिकल था जिसमें श्रीलंका को एक एज एन अपॉर्चुनिटी देखा जा रहा है फॉर अस। सेकेंड थिंग, इसका एक बहुत अच्छा केस स्टडी ये भी हो सकता है कि नाउ सिंस देयर आर इम्पोजिशंस ऑन अस फॉर ऑयल इम्पोर्ट फ्रॉम द मिडल ईस्ट कंट्रीज, तो हम कहाँ से ऑयल इम्पोर्ट कर रहे हैं? वी आर यूजिंग ईरान एंड रशिया। सो दैट मीन्स दैट हमने एक फिजिकल क्राइसिस जो था हमारे पास, हमने क्रिएटिव रिफॉर्म यूज़ किया और हमने उसका एक सोल्यूशन निकाला। तो हम इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल ये दे सकते हैं। But the framing around the issue suggests that this is going to be nothing of the sort. For one thing, bluster about China and great power, all right, finance, tail wag, all right. Second framing is that armed forces needed two fundamental shifts. All right, just a minute. Yes, the armed forces. Where is it? All right. The armed forces needed two fundamental shifts. The shift from reliance on personnel to technology. मतलब जो आर्मी थी उनको दो शिफ्ट की ज़रूरत थी, मेजर शिफ्ट की। पहला है कि हमें अपना जो निर्भरता है, जो हम अभी पर्सनल यानी आर्मी के लोगों पे निर्भर करते हैं, उसकी जगह हमें टेक्नोलॉजी लेके आनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ है एक यंगर एज प्रोफाइल ऑफ सोल्जर्स, मतलब दैट मीन्स वी नीड यंग सोल्जर्स इन द आर्मी। अब इसके अंदर भी this is a debatable thing because technology can never replace personnel, and इसमें भी यही वो इन्होंने बताया है, for starters the issue of technology versus troops is one that should be dealt with in its own terms, not governed just by logic of cutting your pension bill। तो सिर्फ क्योंकि अगर जितने कम लोग होंगे उतनी कम पेंशन देनी पड़ेगी, इसीलिए सिर्फ टेक्नोलॉजी पे निर्भरता बढ़ानी नहीं है। हमें अंडरस्टैंड करना है कि टेक्नोलॉजी कहाँ यूज़फुल है और कहाँ नहीं है, एंड पर्सनल को ऐसे कम नहीं कर सकते हम। Also important not to be carried away by simplistic ideas that technology can replace troops। टेक्नोलॉजी हमेशा ट्रूप्स को रिप्लेस नहीं कर सकती है, क्योंकि ऑन ग्राउंड आपको ट्रूप्स की रिक्वायरमेंट है। एवरी रिसेंट वॉर फ्रॉम अफगानिस्तान टू यूक्रेन का एग्जाम्पल दिया है इन्होंने। अ यंगर एज प्रोफाइल माइट हेल्प बट श्योरली हैज़ टू बी वेड अगेंस्ट ट्रेनिंग, कि आप यंग लोगों को अगर ट्रेन करते हैं तो उनके अंदर एक्सपीरियंस और प्रोफेशनल बॉन्ड लाना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक चिंता का विषय हो सकता है। वन मेजर रिफॉर्म इज रिक्रूटमेंट ऑन एन ऑल इंडिया बेसिस। तो द ऑथर इज ऑल्सो सेइंग कि एक अच्छी चीज़ जो इसमें है इज रिक्रूटमेंट ऑन एन ऑल इंडिया बेसिस। नाउ व्हाट दिस इज कि आर्मी की जो सक्सेस है एज एन इंस्टीट्यूशन, वो एम्बेडेड है उसकी डेमोक्रेसी के अंदर। क्योंकि आर्मी हमेशा एक रीजनल बैलेंस मेंटेन करके चलती है, एंड आर्मी जो ऑल इंडिया की एक फिगर लेके चलती है अपने साथ, वो सिर्फ इसी वजह से कर पाती है बिकॉज इट हैज़ अ रीजनल बैलेंस। अब ये रीजनल बैलेंस इसलिए इम्पॉर्टेंट है, वाई दिस रीजनल बैलेंस इज क्रूशियल इन अवॉइडिंग एथनिक कॉन्फ्लिक्ट एंड सिविल वॉर। अगर ऐसा नहीं होगा तो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट या सिविल वॉर हो सकती है अगर सिर्फ एक ही रीजन से या एक ही एथनिसिटी के लोगों को आर्मी में लिया जाए। तो जैसे हम ब्रिटिशर्स के टाइम पे अगर देखें तो बिल्कुल वैसे ही आप देख सकते हैं कि उनका जो 1857 के रिवोल्ट के बाद रिफॉर्म्स थे, उसके अंदर 1:3 का जो रिफॉर्म था कि हर 3 इंडियन सोल्जर्स के साथ एक यूरोपियन हेड होगा या एक यूरोपियन सोल्जर होगा। सो दे मिक्स द आर्मी इन अ सेंस कि जो डिस्पैरिटी है वो ख़त्म हो जाए और डेमोक्रेटिकली एक रीजनल रिप्रेजेंटेशन रहे आर्मी के अंदर। सेकेंड चीज़ इसमें बोली गई है, ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट विल रिक्वायर अ मैसिव ऑर्गेनाइजेशनल एंड कल्चरल शिफ्ट इन द आर्मी। ये तो दिस इज़ अ लॉजिस्टिकल इशू जो आर्मी खुद कैटर करेंगी, राइट। नेक्स्ट इसमें जो आप ये लिख सकते हैं कौन इसमें आ सकता है कि ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट विल रिक्वायर अ मैसिव ऑर्गेनाइजेशनल एंड कल्चरल शिफ्ट इन द आर्मी, right? But here the objectives are internally inconsistent if you want to create a new regimental cultures। ये लाइन जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है एंड आई लव दिस लाइन। यू कैन यूज़ दिस लाइन एज इट इज़ इन योर आंसर्स। आप ये लाइन ऐसी की ऐसी आंसर्स में लिख सकते हैं कि
क्या होता है, अगर आर्मी को रेजिमेंटल सेंटर्स या कल्चर्स भी बनाने होते हैं, रेजिमेंटल कल्चर्स भी बनाने होते हैं, तो उसके लिए सोर्स ऑफ लॉयल्टी और डिसिप्लिन चाहिए होता है। आर्मी के अंदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लॉयल्टी एंड डिसिप्लिन, राइट? बट लॉयल्टी और डिसिप्लिन को लाने के लिए आपको लॉन्गर टर्म चाहिए होती है, लॉन्गर टर्म ग्रेटर देन 5 years। बट ये शॉर्ट सर्विस कमीशन है लेस देन दिस, अप्रोक्सीमेटली 4 years की। तो लॉयल्टी एंड डिसिप्लिन आप इतने शॉर्ट पीरियड में कैसे लेके आएंगे, ये आपका आंसर में मेन पॉइंट होना चाहिए एज अ रेड फ्लैग फॉर दिस रिफॉर्म। आप ये आंसर में एज इट इज लिख सकते हैं, एंड बहुत ही अच्छी और बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि आर्मी को लॉयल्टी और डिसिप्लिन चाहिए, बट लॉयल्टी और डिसिप्लिन मेंटेन और लाने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, जो 4 साल में आना बहुत मुश्किल है। इसमें वही लिखा है, लॉन्गर टर्म्स ऑफ सर्विस टुगेदर rather than shorter ones, that from an experience of other institutions that it might be harder to integrate recruits that are on two different professional tracks। ये भी एक इशू इसमें उठ के आ रहा है कि 4 साल बाद जो 75% रिक्रूट्स होंगे उनका फ्यूचर थोड़ा सा अनसर्टेनिटी है। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ने इसका भी प्रावधान दिया है, अब दे हैव प्रोवाइडेड अ सोल्यूशन इन टुडेज और यस्टरडेज मॉर्निंग एज वेल, जिसमें उन्होंने कहा था कि दे विल बी गिविंग प्रायोरिटी रजिस्ट्रेशन एंड प्रायोरिटी इंक्लूजन्स इन CAPF एंड बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, आई गेस। तो the government will provide incentives to the people who have left this scheme, right? Many armies have short tours of duty because there is a shortage of potential recruits। तो why armies have short tours of duty? क्योंकि उनके पास potential recruits जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं। इस केस में क्या होता है कि वॉलंटरी एनलिस्टमेंट होती है, मतलब सपोज World War I में या World War II में इट वॉज वॉलंटरी एनलिस्टमेंट, मतलब आप आर्मी के किसी भी ऑफिस में चले जाओ, रीजनल ऑफिस में, वहाँ पे बोलो कि आपने आर्मी के लिए रिक्रूट करना है और वो आपको नेक्स्ट डे ही मेडिकल के लिए भेज देंगे। दिस इज वॉलंटरी एनलिस्टमेंट। एंड बट वॉट ही सेइंग कि आर्मी को अब ये लोग एक स्किल डेवलपमेंट स्कूल की तरह प्रेजेंट कर रहे हैं। Now, this is also a very skeptical view, but you can use this if you want 3 or 4 points in this article. Now, the next point is what happens to the idea of professional identity where your service is so short. Doubtless, it can shape you, but can it become your professional identity? Basically, what they're saying कि जब आप 4 साल का कुछ भी कोर्स करते हैं, you get a professional identity. For example, engineer, doctor, right? Any 4 year course for that matter, you get a professional identity based on which आपकी पूरी लाइफ गवर्न होती है, जॉब से लेकर आगे जो आप जितना भी काम करेंगे वो उस प्रोफेशनल आइडेंटिटी पे बेस्ड होता है। बट आर्मी में ऐसा नहीं है। इन 4 years यू इधर डेवलप अ प्रोफेशनल आइडेंटिटी और नॉट। और अगर आपकी प्रोफेशनल आइडेंटिटी आर्मी से इंक्लाइन नहीं हुई तो वो स्किल्स बहुत मुश्किल है एक सिविलियन लाइफ में यूज करना, right? You won't be handed guns right after you come out to the army, tanks chalana, grenades, anything for that matter। Battlefield rules are only meant for the battlefield and war grounds, right? So ये एक बहुत बड़ा issue हो सकता है जो ऑथर ने रेज किया है, and this can be a very legit issue unless and until the government provides a clear cut solution कि इसमें क्या हो सकता है। बट इवन मोर इम्पॉर्टेंट इज द सेंस ऑफ प्रोफेशनल आइडेंटिटी। सो कहीं ना कहीं ऑथर इज सेइंग कि प्रोफेशनल आइडेंटिटी लोगों, क्योंकि 17 से 21 में लोग बच्चे ही होते हैं, उनके अंदर ये प्रोफेशनल आइडेंटिटी आना थोड़ी सी मुश्किल बात हो सकती है। So the author is worried about this only, but I believe that the government will have a solution for this as well. What does it mean to have an institution where for a large majority of recruits the institution will not be significant part of your professional identity? तो बेसिकली यहाँ पे भी यही उठा है क्वेश्चन कि अगर ये प्रोफेशनल आइडेंटिटी का पार्ट नहीं बना तो क्या होगा। एंड 75% ऑफ रिक्रूट्स के लिए ऐसा नहीं होगा, हो सकता है 50% ऑफ रिक्रूट्स के लिए भी ना हो। तो दे विल हैव टू फिगर समथिंग आउट इन देयर लाइफ, बट वो 4 years का यूज
जो उनकी प्रोफेशनल आइडेंटिटी बन सकता था, वो नहीं होगा. So this is a major point of concern, and this, I believe, the government has to and needs to answer this question to bring a sense of answers, I believe, among the people जो restless हो रखे हैं इस समय. Is it delicate needle to the thread? ये बहुत अच्छा phrase है, delicate needle to thread. If the army experience is so fabulous that no civilian job after it matches up to its sense of purpose or working conditions, you are setting up a large number of young people to a life of frustration. इसका मतलब क्या हुआ? जैसे सपोज कुछ लोगों को आर्मी की लाइफ इतनी अच्छी लगी कि जब वो आगे सिविलियन लाइफ में आए, उनको वो मज़ा ही नहीं आ रहा. सो दे विल बी फ्रस्ट्रेटेड entirely, right? But ये ना बहुत ज़्यादा, मतलब we can say pessimistic view है, because you are basing this fact on nothing. मतलब there's no basis to this fact कि बच्चे क्या सोचेंगे या क्या करेंगे या what are they going to think. This is just basing purely on it is not, this does not have a legal or a medical or scientific backing. अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है बट स्टिल यू हैव टू लीव इट, दिस नो पॉइंट. मतलब हमें अगर इंजीनियरिंग पसंद है, हम कॉलेज में जा रहे हैं, तो हम कॉलेज से जब निकलेंगे तो चाहे हमें इंजीनियरिंग कितनी भी अच्छी लगे, बट हमें उस चीज़ को छोड़ना ही पड़ेगा. दिस इज द पॉइंट ऑफ बीइंग एन अडल्ट इन लाइफ. No matter how much you like something, when it's time to leave, you have to graduate and leave and move on to the next step in life. सो जस्ट थिंकिंग दिस कि वो उनको फ्रस्ट्रेशन होगा इसी चीज़ से कि आर्मी से अच्छी चीज़ उनको मिल ही नहीं सकती. दिस इज समथिंग आई बिलीव वी कैन नॉट यूज. दिस इज जस्ट फॉर अ प्योरली थिंकिंग पर्सपेक्टिव. नेक्स्ट है कि अगर एक ग्रेट एक्सपीरियंस बच्चों को नहीं मिला आर्मी के अंदर 4 साल के अंदर, तो क्या होगा कि पोटेंशियली मिलिटराइजिंग अ लॉट ऑफ यंग पीपल. आप उनको गन्स की ट्रेनिंग दे रहे हो, ग्रेनेड्स, टैंक्स, मतलब एक वॉरियर काइंड ऑफ बना रहे हो लोगों को, एंड यू आर सेंडिंग देम इनटू द सिविलियन पॉपुलेशन. नाउ इसका यूज हो सकता है बट मिसयूज भी कहीं ना कहीं हो सकता है. सो स्केप्टिकल पेसिमिस्टिक व्यू, बट स्टिल 1% आई से रियलिज्म इज प्रेजेंट इन दिस. क्योंकि जिन लोगों को ट्रेनिंग मिली है ऐसी चीज़ की, ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे या सारे एडल्ट जो उसमें से निकलेंगे वो अच्छे होंगे, सेन माइंड के होंगे. तो एनीथिंग कैन हैपन विद दिस वर्कफोर्स जो यहाँ से निकलेगा, राइट? बिकॉज यू विल बी ट्रेनिंग देम विद लीथल वेपन्स, हाउ टू, राइट? तो उनके बाद सिर्फ हाथ में उनके गन आनी चाहिए या कुछ भी आना चाहिए, एंड दे विल बी रेडी टू फाइट. There is an ample evidence of potential for militarization of society that comes from prematurely decommissioned soldiers. Prematurely जो soldiers decommission हो जाते हैं, वो सोसाइटी के अंदर मिलिटराइज्ड फॉर्म्स में बन जाते हैं, रह जाते हैं. तो उसके बाद इसके अंदर राइज ऑफ किसका हो सकता है? राइज ऑफ मर्सेनरीज का हो सकता है. मर्सेनरीज का मतलब आपको समझना पड़ेगा, एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस बता रहे हैं हम, कि हो सकता है जिन लोगों को बंदूक चलाने की ट्रेनिंग मिल गई हो वो एज बॉडी गार्ड्स काम करें, वो एज प्राइवेट सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर्स काम करें, जिसका इंग्लिश में मतलब हुआ मर्सेनरीज के रूप में. वो किसी और कंट्री में जा सकते हैं काम करने के लिए एज मर्सेनरीज. और इनफैक्ट इफ दे आर नॉट ऑफ द सेम माइंड एंड दे हैव नॉट वेरी गुड व्हाट शुड आई से, they don't manifest good intentions towards our country, then there's also a possibility that they might turn against us, against our forces. It's a very long and a very skeptical and a very pessimistic view, but there's a 0.5% chance that this can and might happen. Because आप नहीं गेस कर सकते हैं कि जिस बंदे को ट्रेनिंग मिली है उसका दिमागी संतुलन, आई शुड से, निकलने के बाद, ट्रेनिंग मिलने के बाद, आफ्टर एवरीथिंग, क्या वो सही है, नहीं है, क्या सर्कमस्टांसेस हैं उनके. दिस इज समथिंग जो प्रॉब्लमैटिक इन द लॉन्ग रन हो सकता है, बट अभी हमें चिंता करने की इसकी बात नहीं है, राइट? एंड दैट्स इट. दिस वाज द आर्टिकल. रिफॉर्म्स शुड बी गवर्न्ड बाय अ साउंड सोशियोलॉजिकल, प्रोफेशनल एंड इंस्टीट्यूशनल एंड स्ट्रेटेजिक लॉजिक. ये बहुत अच्छी लाइन है, आप इसको एज इट इज अपने आंसर में यूज कर सकते हैं कि 4
तरीकों से एक रिफॉर्म बनना चाहिए, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव, इंस्टीट्यूशनल पर्सपेक्टिव और स्ट्रैटेजिक लॉजिक के बेसिस पे चीज़ें और रिफॉर्म्स बनने चाहिए। एंड दैट्स इट गाइस, दैट्स इट, ये आर्टिकल था। आपको समझने वाली बात ये है, समराइज करने के लिए हम बता देते हैं कि आर्मी के अंदर लॉयल्टी एंड डिसिप्लिन चाहिए, 4 साल के अंदर ये जनरेट करना बहुत मुश्किल है। सेकेंड, द पीपल हु आर डिस्ग्रंटल्ड, जिनको पहले डिकमीशन कर दिया जाएगा, दे विल हैव वेपन्स ट्रेनिंग, दे विल हैव एक्सट्रीमली मिलिट्री एक्सपीरियंस that can be used against the society and against the society. तो ये एक इशू है। थर्ड पॉइंट है एक बाय स्टैंडर्ड इफेक्ट का। कमेंट सेक्शन में लिखना व्हाट इज बाय स्टैंडर्ड इफेक्ट। ये हमने शायद लास्ट वीडियो में या उससे पहले डिस्कस किया था, बट इससे पहले वाले एक आर्टिकल में है एंड इफ टाइम परमिट्स हम इसको डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, दैट्स इट एवरीवन, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।